Praise the Lord. Hallelujah. Before we start our service, I want to read some Bible verse and then we'll start our service. Isaiah 43 verse 1 to 4. But now thus saith the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you should not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you, because you are precious in my eyes. And honor and I love you. I give men in return for you, people in exchange for your life. Praise the Lord. Here we can say that in this Isaiah, what God said, fear not. Here in this world now, at the time this world, so many people are suffering. So many people are in critical conditions. So many people are live in this world, but although our life, for God said that fear not. Sometimes we may face our life upside down. We may face our life in difficulties. But here what God said, fear not, for I'm with you. I will help you. Yes, He's our God. He's our Savior. So, even we face so many difficulties, do not fear. For God has promised us, do not fear, for I'm with you. Hallelujah, praise the Lord. So, even now, we can know that this COVID, so many people are suffering, but here, our God has been faithful to us. He has been saving us. So fear not. Know that our God is with us. It will not come upon on you. Even though so many people are suffering, but if you're truly faithful to Him, if you're truly humble to Him, obviously He will help you and He will save you from the death of sins. Praise the Lord. Now, dear Heavenly Father, thank you, Father, for this wonderful evening. Lord, we come before you. We commit our life with all our hearts, with all our minds, with all our souls. For you are God, you are Savior. Lord, even today you have been saved us from all the harms, difficulties, every kinds of disease, negative forces, Lord Father. For we know you love us. Even though sometimes we are not being able to faithful in you. But Lord, every day, in every moment, in every second, you have been faithful to us. You have been helping us, protecting us from all the harms, difficulties, Lord Father. We are so thankful to you, Lord Father, for your wonderful deeds, for your wonderful love. Thank you, Lord Jesus, Lord Father, for saving us from all the difficult conditions, from all the difficulties, sufferings. Thank you, Lord Father. We praise your name, Lord Father. We exalt your name, Lord Jesus, Lord Father. Lord, in this time also, help us to praise you with joyful hearts, with joyful minds, Lord Father. And help us to understand your love, Lord Jesus, Lord Father. Lord, I commit our life
into your mighty hands. In Jesus' name. Amen. No. Now, as we're going to worship God and when going to be worship, let us focus on God. Let us dedicate our life to worship, to sing a song. Take my life and let it be done. Let us sing. Take my life and let it be consecrated, Lord mighty. Take my hand and let it move at the emblem of the love, as I am the of thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for them. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my life and let him be, till make me sweet for today. Take my children in my soul, now there's nothing we will fall, nothing my will I will fall. Take my love, my God, I pour, and the healing treasure show. Take my skill and I will be every only all for thee, every only all for thee. Yes, hallelujah. God is giving us wonderful time. He is only saving us in our life. Let us dedicate our hearts and mind to give thanks to God. Let us sing it one more and some song and Hindi song. Slowly but the key जाए कहाँ, किसने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, ओले बद के जाए कहाँ, किसने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे हम बढ़े जाओ, बाकी शांति आराम मिलेगा जमीन। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़े जाओ, बाकी शांति आराम जीवन मिलेगा जमीन। के हम चाहे कहाँ, किसने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जीवन की रोटी हो उसने कहा,
मेरे हम चाहे तू जाए कहाँ तेरे बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ. Yes, we are only one God. Even we are go here and there, we need to come back for the Lord. Even when we live, we don't have any give time to God. Sometimes we are living in God's presence, but however we may be, we need to come back for the Lord. Just we come back for God and closer more and more. This is time for us. Let us worship God and let us give hearts towards Him so that He will bless us. He will save us. Yes, Jesus. Hallelujah. For I'm building a Bible of power, and I'm making a people of praise that will move through this land by my spirit, and will glorify my precious name. Build your church, Lord, make us strong, Lord, turn our hearts, Lord, try us on. Make us strong, Lord, and your body, and the kingdom of your Son. For I'm building a people of power, and I'm making us people of praise that will move through this land by my spirit, and will glorify my precious name. Build your church, Lord, yes, make us strong, Lord, turn our hearts, Lord, through your Son. Make us strong, Lord, and your body, and the kingdom of your Son. Yes, we need to strong to God. Yes, we need to pure and strong our relationship to give Him. Except Him only can save us. He can only give our desire. He only fulfill our needs. Let us walk in God, and let us walk hand by hand go with God. Let us and bow down before God, Lord. Lord Jesus, Lord, once again, thank you for your love, and thank you for wonderful and joyful time, Lord, and for be worshiping and this time, Lord. Even so many of our friends, so many in this world, maybe some of our people, our children, maybe our friends, they could able to worship you, but still you have given a life to sit in your presence, to worship you, Lord, to see our Father, Lord. We just want to say thank you, Father, for your love and saving us, Lord. And thank you for this Sunday, Lord. You have been blessing us a day. You can give us in our life and to stand in front of presence. Thank you, Lord. Thank you for life. You. Now, as I'm going to listen your words, let us cleansing our thoughts and mind to listen whatever speaker will preach, whatever he's proclaim your word. Let us transform our life. Let us transform in our spirit, and let us renew our life. Not God did not give and transfer in the world, but let us give us transfer in the spirit and renew our hearts, Lord. Thank you once again for life, you worship, and thank you, Lord Father. Jesus, Lord. जग में मिसही कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है सहारा तेरे सिवा जग में कोई नहीं. Yes, Lord.
हे हमारा कोई नहीं है सहारा, जीवन की प्रभु ले जा प्रभु तुम, तेरी है राह पर चलना सिखा दे, जीवन की प्रभु ले जा प्रभु तुम, तेरे है राह पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, तेरे सिवा जग में सही कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, शुक्र तुमने रातों प्रभु तुम बेसहारों का, तुम है सहारा, शुक्र तुमने रातों प्रभु तुम बेसहारों का, तुम है सहारा, तुम है सहारा, तेरे सिवा जग में सही कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे मुबारक नाम में आप सबको हमारी तरफ से सलाम। और आज वैसे तो समय के अनुसार भाई संदीप को अपनी सभा में होना था, लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से आज वो नहीं है, और उनके अनुपस्थिति में मैं आज प्रभु के वचन से आपसे बातचीत करूंगा। सो प्रभु का धन्यवाद देंगे क्योंकि उसकी योजनाएं अद्भुत हैं और उसके सोचने में और करने में एक अलग सोच विचार रहता है। तो हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे। प्रभु के वचन में से हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह 18 चैप्टर और उसका 1 से लेके 6 आयत तक, है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और 1 से लेकर के 6 आयत तक, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके समक्ष पढ़ दूंगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा है वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि मैं इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ, क्या मैं भी यह काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। बड़ा
सुंदर वचन है ये। और आज के कॉन्टेक्स्ट में जब बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक जब मैं इसको पढ़ रहा था और इसमें एक बात लिखी हुई है, जिक्र है मिट्टी का, है ना। और आज हम लोग ये बड़ा एक कॉमन हो गया है, मिट्टी, है ना। और हम लोग बहुत सुन रहे हैं मिट्टी मिट्टी और मिट्टी, बहुत देख रहे हैं मिट्टी मिट्टी और मिट्टी, है ना। अभी कुछ ऐसा समय चल रहा है। और यहाँ पर भी परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं कि वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उस मिट्टी से कुछ बर्तनों को डिज़ाइन किया जा रहा था, बनाया जा रहा था उस कुम्हार के घर में, है ना। तो क्यों मिट्टी का इस्तेमाल कुम्हार करता है ना, या अगर हम लोग इस बात से सोचें कि क्यों मिट्टी का इस्तेमाल मनुष्य को बनाने के लिए किया गया, एक बड़ा अजीब सी चीज़ है ना। मिट्टी क्या है एक्चुअली, क्या है, अभी हम लोग देखते हैं जिस जिस रंग की मिट्टी देखी जाती है उसी उसी रंग की त्वचा भी आपको मिलेगी ना। जिस मिट्टी का रंग नहीं है, जिस रंग की मिट्टी नहीं होती है, उस रंग का आपको मनुष्य भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो मिट्टी जहाँ तक मैं समझता हूँ इसलिए प्रयोग की गई ताकि कोई घमंड ना कर सके, है ना, कि हम इससे बने हैं, उससे बने, मिट्टी से बने हुए। और एक दिन क्या होगा, उसी मिट्टी में जाकर के मिल जाते हैं, है ना। हम लोग एक माटी के पुतले के समान है ना। अय्यूब में लिखा हुआ है, जो मेरी फेवरेट वर्स भी है, वन ऑफ द फेवरेट वर्स, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि अय्यूब 34:14-15 वर्स में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि यहोवा अपनी आत्मा और अपनी श्वास अपने में ही समेट ले तो सारे देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मिट्टी में मिल जाएगा मतलब मिट्टी से निकाला गया है, एंड अगेन ही विल गो इनटू द डस्ट, है ना। वो फिर से मिट्टी में जाकर के मिल जाएगा। सो मिट्टी, ताकि जो हम लोग हैं मिट्टी के पुतले हैं। और एक जगह पर पॉल भी लिखता है कि वी आर द ट्रेजर इन द मड पॉट। ऑल्दो वी आर इन दिस मड पॉट, हम लोग इस मिट्टी के शरीर में जरूर हैं, लेकिन हम लोग एक ट्रेजर हैं। और इस समय हम कहेंगे कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन इधर उधर फैले पड़े हैं। ऐसे समय में, जब ऐसा समय चल रहा है मिट्टी के बारे में, और ऐसा समय है जब बहुत सारे लोग इस दुनिया से रहलत कर जा रहे हैं, हमारे बहुत से करीबी लोग और हमारे जान पहचान के लोग, है ना, ऐसी समय में इस दुनिया से कूच कर जा रहे हैं, रहलत कर जा रहे हैं। और बहुत सारे परिवारों में इस समय, जैसा हम कल भी सुन रहे थे, गम का माहौल है। और पीछे 1 साल से ये पैंडेमिक चला आ रहा है, और इस समय में बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं में घिरे हुए हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी की समस्या है कि वहाँ पर उसके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी की समस्या है 1 साल से उनको पूरा तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी की समस्या है कि उनके यहाँ राशन उनको उपलब्ध नहीं हो किसी को मेडिकेशन नहीं मिल पा रहा है ना, जो उसका रेगुलर मेडिकेशन था वो रेगुलर मेडिकेशन उसको नहीं मिल पा रहा। ऐसा बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के दुखों में लोग आज मुब्तला हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें फंसे हुए हैं। और ऐसे समय में जब बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के दुखों में हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आप किस प्रकार के दुख में हैं, आपको कौन सा दुख है, आप किस तकलीफ में हैं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि हम लोग, सभी लोग, किसी न किसी एक ऐसा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे होकर के समय जा रहे होंगे। और ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि ऐसा समय जब पूरा संसार अलग अलग प्रकार के समस्याओं में है, तो हम लोग भी एक कोई समस्या में हैं। तो यहाँ पर जो मैटर है वो ये नहीं है कि हम समस्या में हैं या नहीं है, या समस्या क्या है ना। मैटर ये है कि हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, तो
क्या करता है, मिट्टी का जब बर्तन बनाया जाता है ना, तो हम देखते हैं क्या करा जाता है, मिट्टी से क्या कर देते हैं। अगर हम प्रोसेस को देखेंगे, एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस है ना, क्या करते हैं, मिट्टी को पानी में भिगो के रखते हैं ना, पहले तो छान लेते हैं, छान के मोटे मोटे कंकड़ अलग कर देते हैं ना। जब प्रभु को हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मोटे मोटे कंकड़ निकाल दिए है ना। किसी को है ना, किसी को किसी चीज की दिक्कत थी, किसी को किसी चीज की लत थी, किसी को किसी चीज की लत थी, तो जो मोटे मोटे पत्थर थे हमने उस समय हटा दिए, छान लिया है ना, प्रभु को स्वीकार करने के बाद। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए हैं उस प्रोसेस में। और एक समय फिर ऐसा आता है जब भिगो देता है, भिगोने के बाद भी वो पैर से उसको रौंदता है ना, और तब भी छोटे छोटे कंकड़ निकाल निकाल के फेंकता रहता है, छोटे छोटे। वो कंकड़ कैसे, बहुत छोटे छोटे, बड़ी चट्टाने नहीं है जिनको रिमूव करना है, क्या है, छोटे छोटे कुछ पत्थर हैं जिनको अभी रिमूव करना बाकी रह गया है। और हमारे जीवनों में भी शायद कुछ ऐसे छोटे पत्थर अभी रह गए होंगे जिसको अभी और रिमूव करना बाकी है। शायद तभी हम बहुत अच्छे बर्तन अभी नहीं बने। और वहां पर लिखा हुआ है कि वो चाक का, और हम लोग जानते भी हैं, अगर वो बर्तन उस पर रख करके रोटेट किया जा रहा है, चाक पर रख करके वो रोटेट हो रहा है, एंड वाइल जब वो प्रिपेयर हो रहा है, जब वो बन रहा है बर्तन, और जब वो बन करके आकार ले रहा है, अगर उसमें कोई छोटा सा भी किनका आएगा और हाथ लगाने के द्वारा जब हम उसको कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो किनकी जो हल्का सा भी एक छोटा सा, बहुत जरा सा किनकी क्या करेगी, वो पूरी जगह पर, क्योंकि वो रोटेशन हो रहा है, एक बड़ा स्क्रैच ला के दे देगी, एक स्क्रैच आ जाएगा हमारी लाइफ, और वो स्क्रैच विजिबल होगा, है ना। ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल स्टोन, यो एक बहुत छोटा सा पत्थर है, लेकिन वो बहुत छोटा सा माइन्यूट सा ना दिखाई देने वाला एक कंकड़ हमारे जीवन में एक ऐसा स्क्रैच ला देता है जो बहुत लोगों को, मतलब दूर से दिखाई देने वाला स्क्रैच ना। बाइबल भी हमको बताती है ना, लिखा हुआ है क्या होता है, एक जगह लिखा है ना कि क्या करना है, कौन दाग की बारी को खराब कर रही है ना, बड़े बड़े भेड़िए, नहीं वहां लिखा है छोटी छोटी लोमड़ियां, गाना भी है उस पर, बच्चे संडे स्कूल में सीखते हैं। तो क्या हो रहा है, वो कई बार ये खराब हो जा रहा है ना, छोटी छोटी लोमड़ियां आकर के दाग की बारी को खराब कर दे रही हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें जिनको हमको बहुत ध्यान रखना है, वो एक ऐसा स्क्रैच हमारी लाइफ में ला देती हैं जो ओवरऑल विजिबल होता है, और उससे उस पात्र की जो बर्तन तैयार हुआ है उसका महत्व कम हो जाता है, उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट माइन्यूट्स, वो एक छोटे से कंकड़ के कारण। और ये मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज हमको आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में हमको अपने आत्म मंथन करना बहुत जरूरी है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है, क्या मैं अगर वो जब ये मिट्टी में मिलेगा, ये जो मिट्टी है, मिट्टी का रूपी शरीर है, जब इसमें से डायमंड निकल जाएगा, रहलत हो जाएगी, तो जो मिट्टी बचेगी वो तो कोई काम की नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। उस समय तक पहुंचने से पहले, है ना, एक गीतकार, भजनकार भी लिखते हैं कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे रूह से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी गुणानुवाद कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो दिस इज द टाइम वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, है ना, हमको अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। कौन सा छोटा सा पत्थर है जिसकी वजह से मामला खराब हो रहा है ना, वो हमको देखना है। और वहां पर लिखा हुआ है 18 और 3 में, तीसरी आयत में, कि वो चाक पे रख करके घुमा देता है, घुमा दिया जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ है वो अपनी समझ के अनुसार बनाता है। कैसे बनाता है, अपनी समझ के अनुसार, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में आने वाले बर्तन बनते हैं।
बहुत सारे बर्तन खराब हो गए हैं, एक रिवाइव की आवश्यकता है। बहुत सारे बर्तन कहीं ना कहीं स्क्रैच आ गया है, उसको रिवाइव होने की आवश्यकता है। बहुत सारा चीज़ें हैं, है ना, जिनको बदलने की ज़रूरत है। और उसके बाद जब वो बर्तन बन जाएगा, वो कंकड़, छोटे वाले कंकड़ भी निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, जब वो बन करके तैयार हो जाता है, धूप में थोड़ी देर रखते हैं, है ना, हल्की धूप लग जाती है। उसके बाद फिर उसको काट करके क्या किया जाता है, उसको काट करके क्या करते हैं, उस बर्तन को ले जा करके फर्नेस में डालते हैं, उस भट्टी में डाला जाता है। उस भट्टी का जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर वो फर्नेस का भट्टी का जो टेम्परेचर है वो रहता है। और उस टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है। शायद हम लोग भी आज किसी फर्नेस में हैं, बड़ी गर्माहट महसूस हो रही है, गर्मी आ गई है, इस गर्मी आ गई है, मौसम तो गर्मी का आ गया है, उसके साथ बहुत सारी गर्माहट भी आ गई है ना। आज कोई भी किसी के घर जाने से डर रहा है, कोई भी किसी से मिलने से डर रहा है, कोई भी किसी से भी कहे हाथ मिलाना नहीं, जय मसीह की। ऐसा समय आ गया है, एक दूसरे के सामने लोग हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ मिला नहीं रहे हैं ना, हाथ जोड़ने का समय आ गया है। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। इन सारे चेंजेस में, इन सारे बदलाव में कैसे हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग देख सकते हैं। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 6 7 आयत, उसमें कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस हम लोग पढ़ लेंगे। पहला पत्रस, पहला अध्याय और उसकी 6 7 आयत, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इस प्रकार से कह रहा है कि यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के, कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दुखों में तुम हो, लेकिन ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जब तुम इन भट्टी में होकर के जब गुजरोगे, जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा तो क्या होगा, तो तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जो 24 कैरेट गोल्ड है उससे भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास। और तुम वो क्या होगे, जब प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। Yes, you are in trouble. Yes, we are in trouble. Yes, we are in a time. हम लोग एक ऐसे समय में हैं जो कठिन समय है, मुश्किलातों का समय है, तकलीफ का समय है, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं। हमें से बहुत लोगों के जो प्रियजन हैं उनसे दूर होंगे, बहुत सारा समय होगा, बहुत सारी तकलीफ होगी, आपके हृदय में तकलीफ हो सकती है,
जो किसी को शायद दिखाई नहीं दे रही है। आपके मन दुखी हो सकते हैं, जिसके बारे में आप शायद किसी से बता नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको एश्योर करता है ये थोड़े समय का जो क्लेश है, ये जो क्लेश है ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं जाएगा, ये भी समय हट जाएगा। जिस प्रकार से बीते बहुत सारी तकलीफें आई और वो समय चला गया और फिर एक रिफ्रेशिंग टाइम आया, प्रभु ने एक कंफर्ट का समय दिया, उसी प्रकार से ये जरूर एक समय है जब हम उस भट्टी में हैं, लेकिन ये भट्टी में सदैव हमें नहीं रहना है। यहां से एक समय आएगा कि हम लोग इस भट्टी से निकाले जाएंगे। और क्या होगा? निकालने के बाद लिखा हुआ है कि प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष। प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रशंसा, आदर और महिमा का कारण। दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग होप फॉर अस। जरूर है ये सब है दिक्कत, जरूर है ये तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ से हम एक दिन पार पाएंगे, इसके पार जाएंगे और वहां पर हम आदर महिमा का कारण ठहरेंगे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष। दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज ये एक बहुत बड़ा चीज है जो परमेश्वर हमारे सामने कहता है। फर्नेस से हम लोग निकाले जाएंगे। और एक और आयत है पहला पत्रस की 4 अध्याय और 12वीं आयत से, यहाँ लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के निमित्त तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है ना? क्या कह रहा है कि आनंदित और मगन हो। जब कोई समस्या है, तकलीफ है, ऐसे समय में एक एश्योरेंस है कि एक दिन हम ये सब चीजों का रिवॉर्ड पाएंगे, है ना? और ये कब तक होगा? ये भी एक प्रश्न है, कब तक होगा? मेरे जीवन में कब तक चलेगा, है ना? मेरे जीवन में ये कब तक चलेगा? कब तक भट्टी में रखा जाता है? भट्टी में तब तक रखा जाता है जब तक वो क्या हो जाता है, पक के तैयार नहीं हो जाता है बर्तन। सोना कब तक रखा जाता है? सुनार का प्रोसेस क्या है? सुनार क्या करता है? बार बार जब वो सोने को देखता है, देखने के बाद उसमें क्या करता है, अपना प्रतिबिंब देखता है। क्या सोना इतना पक्के हो गया है कि उसमें मेरा चेहरा दिखाई दे, मेरा रिफ्लेक्शन क्या उसमें दिख रहा है? जब रिफ्लेक्शन दिखने लगता है, प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है, तब वो समझ जाता है कि ये पूरी तरीके से रेडी है। क्या आपके और मेरे जीवन में वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? क्या मैं जिसके नाम का मैं कहलाता हूँ उसके नाम को या उसको मैं प्रतिरूपित कर पा रहा हूँ? क्या मेरे अंदर से वो दिखाई दे रहा है क्या, है ना? आज हम लोग अपने नाम के आगे लगा रहता है, मेरा नाम है डायमंड है, लोग डायमंड देख के समझ जाएंगे अच्छा ये क्रिश्चियन है। संदीप विलियम, फला डिकोस्टा, कोई ऐसा तमाम सारे नाम है, सैलियस क्रिश्चियन। हमारे नाम के कारण मसीह हैं। और अगर हम देखें प्रथम कलीसिया में लोग किस कारण मसीह कहलाए? किस कारण से मसीह कहलाए? पहली कलीसिया में वो लोग, पहली कलीसिया में लोग मसीह कहलाए थे क्योंकि क्या लिखा हुआ है वहां पर, चेलों को देख करके, चेलों के कामों को देख करके लोगों ने उन्हें मसीह कहा था। क्योंकि जैसे वो उठते बैठते थे, जो उनके काम थे, जो उनका तरीका था, उसको देख करके उन्होंने उनको मसीह कहा। हमें देख करके लोग मसीह कहते हैं कि नहीं? कि मेरे नाम के कारण लोग मुझे मसीह कहते हैं।
ये एक सोचने की बात है कि मैं उसको प्रतिबिंबित करता हूँ या नहीं, है ना। और जो एक और बात है जो मैं बताना चाहूँगा, है ना, कब तक ये चलेगा। एक तो ये है कि जब तक हमारा रिफ्लेक्शन ना दिखाई देने लगे। हम लोग ये स्टेजेस हैं ना, स्टेज अलग अलग हैं, हमको समझना पड़ेगा हम किस स्टेज में हैं, मैं किस स्टेज में हूँ। क्या मैं अभी वो पहली वाली स्टेज में हूँ कि जब मोटे पत्थर निकाले जाने हैं, या मैं उस स्टेज तक आ चुका हूँ, मोटे पत्थर हट चुके हैं, अब शायद कुछ कुछ छोटे छोटे पत्थर रह गए, या मैं उस छोटे पत्थर वाली स्टेज को भी पार कर चुका हूँ, मैं फर्नेस वाली स्टेज में आ चुका हूँ। मैं किस स्टेज में हूँ। सबकी अलग अलग स्टेजेस हैं और उन्हीं स्टेजेस के अनुसार हम अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमको सोचना है कि हम किस स्टेज में हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बताऊँगा। एक बार क्या हुआ, एक मिशनरी अफ्रीका में गया था मिशनरी के रूप में। वहाँ से जब वो लौट रहा था, और जब वो वहाँ से लौट रहा था मिशनरी, तो लौटने के समय में शिप से वो यात्राएं हुआ करती थी, और वो एक शिप से वापस लौट रहा था। और शिप से लौटने के समय में जब शिप जब वहाँ पर पहुँचा पोर्ट पर, और फिर उसने देखा कि वो जो नीचे आता है वो आया और लोग उतर के जाने लगे। और उसी बीच में उसने देखा कि जब वो आ रहा था जहाज़ से, तो उसको उस पानी के जहाज़ से, तो उसने देखा कि दूर की तरफ खूब लोग खड़े हुए हैं और वो लोग, उसको बड़ी भीड़ सी दिखाई दे रही थी। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि अरे ये भीड़ में तो कुछ लोग बड़ा ये ड्रम और ये सब ढोल, कुछ आवाज़ सुनाई दे रही, कुछ म्यूज़िक जैसा लग रहा है, लेकर के खड़े हुए हैं। जब और पास पहुंचा, उन्हें देखा लोगों के हाथ में मालाएं भी हैं, तो उसने सोचा अरे वाह, इतने ढेर सारे लोग मुझको वेलकम करने के लिए आए हैं। और वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया और अपना, मेरे पास नहीं है कॉलर, है कॉलर वॉलर ठीक करके थोड़ा सा फिर वो जाने लगा। और जब वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा बगल से एक और व्यक्ति आगे आया, और आगे जा कर के जैसे ही वो आगे उसके जो आगे व्यक्ति आ गया और आगे जाने लगा, उसको सब लोग फूल माला डालने लगे। वो वहाँ का मेयर था, और सब लोग उसको फूल माला करने लगे और सब लोग उसको लेकर के चले गए। और ये मिशनरी वहीं खड़ा रह गया अकेला। सारे लोग धीरे धीरे उतर के जा रहे हैं, इसको कोई भी रिसीव करने नहीं आया है, और ये वहाँ पर अकेला रह गया। शिप भी वापस चला गया। ये उस जगह पर, उस तट पर अकेला खड़ा हुआ था, बहुत निराश था, बहुत हताश था कि हे प्रभु, मैंने इतने साल तक आपकी खिदमत की है, कोई भी मुझे लेने नहीं आया है। मैं लौट करके आ गया हूँ अपने वतन में, अपने घर पर, कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई भी मैंने इतने साल आपकी सेवा करी, अब मुझको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। और इसको देखिए आप कैसे अवार्ड मिल रहा है, कैसे लोग इसको रिसीव करने के लिए आए। प्रभु ने उससे कहा, ओ गॉड, गॉड ने उससे कहा, ओ माई सन, है ना, यू स्टिल डिड नॉट रीच टू योर डेस्टिनेशन। ओ माई सन, यू स्टिल डिड नॉट रीच टू योर डेस्टिनेशन। ओ मेरे बेटे, तुम अभी तक अपने डेस्टिनेशन में, अपने घर आए नहीं हो। डोंट थिंक यू रीच्ड योर होम। ये मत सोचो कि तुम अपने घर पहुंच गए हो, तुम अभी तक अपने घर पहुंचे नहीं हो। And the time will come. Remember my friends, मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को स्मरण रखिए, अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं। ये तकलीफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमको दुखी करती हैं। इसके पास ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ये क्यों, मेरे साथ ये क्यों, उसके साथ ये क्यों। बहुत सारी चीजें हमको दुखी करती हैं। लेकिन एक बात है, हम अभी तक घर पहुंचे नहीं हैं। स्टेफनस के बारे में मुझे स्मरण आता है ना। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हम हमेशा इस बात की बात करते हैं कि, है ना, हमें हमेशा ये पढ़ते हैं, हमेशा इस बात की बात करते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है करके हम लोग पढ़ते हैं, विराजमान है करके पढ़ते हैं।
और स्तिफनुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्तिफनुस जब वहां पर जा रहा था, है ना, स्तिफनुस को खींच के जब वो लोग बाहर की ओर लेकर के गए, एंड दे स्टार्टेड टू स्टोन हिम, जब उसको पत्थर वार करने लगे और जब वो पत्थर मार रहे थे उसको, और उस समय में स्तिफनुस ऊपर नजर उठा करके कहता है, हे मेरे परमेश्वर, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं, करके वो प्रार्थना करने लगा। और उस समय में लिखा हुआ है, स्तिफनुस बताता है, स्तिफनुस जो मैथ्यू मार्क जब हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, जब जो लिखने वाले हैं वो ये बताते हैं कि स्तिफनुस ने क्या लिखा है। स्तिफनुस ने क्या बोला कि मैं क्या देखता हूं, क्या देखा था स्तिफनुस ने? प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा था। कैसा देखा है? स्तिफनुस ने स्वर्ग के दरवाजों को खुला हुआ और प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। जीसस हिमसेल्फ was waiting for his son Stephanus, and he was ready to hug him, to welcome him, to give him a warm welcome. वो यीशु मसीह खुद वहां पर खड़े होकर के एक अच्छा एक आलिंगन देने के लिए वहां पर खड़े हुए थे, एक प्यार देने के लिए खड़े हुए थे। ओ मेरे बेटे, तुम अपनी रेस कंप्लीट करके आ रहे हो, आई एम स्टैंडिंग एंड वेटिंग हियर। महिमा, प्रशंसा, क्या हम जब जाएंगे तो क्या वो महिमा प्रशंसा हम पाएंगे कि नहीं? या अभी भी कंकड़ निकलने हैं, अभी भी उस भट्टी से निकलना बाकी है? अगर कुछ रह गया है तो हम लोग अपना आत्म मंथन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसको निकलना अभी बाकी है, और उसके बाद हम प्रभु के उस वेलकम में जा पाएंगे। हमें ये करने की ज़रूरत है। आखिरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, वो ये है ना, सबसे आखिरी में जब ये पॉट तैयार हो जाता है, वहाँ से भी निकल के आ जाता है, तो वो मार्केट में चला जाता है। नाउ वी आर इन मार्केट। क्यों मार्केट में जाता है ना? मत्ती देखेंगे हम लोग, मत्ती मैथ्यू 5:13-16, मैथ्यू 5:13-16, है ना, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बड़ा फेमस चैप्टर है मैथ्यू 5:13-16, है ना, मेरे पीछे भी आपको शायद दिख रहा होगा, मैथ्यू 5:13-16, ये दिखा सकता हूँ आपको, है ना, मैथ्यू 5, बी दीज, मैथ्यू 5:13-16, बी दीज। वहां पर कैसे प्रकाश लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो फिर किसी काम का नहीं है, केवल इसलिए बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले लौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और उसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हम जब मार्केट में आ गए हैं, सो आर वी दिस? क्या हम लोग हैं? क्या हम लोग नमक हैं? क्या हम लोग लाइट हैं? क्या मैं किसी को रास्ता दिखा पा रहा हूं? क्या मैं किसी के जीवन में कोई नमकीनियत ला पा रहा हूं? या मेरी प्रेजेंस से स्वाद बिगड़ जा रहा है ना? कई बार किसी लोगों के होने से स्वाद बिगड़ जाता है, स्वाद नहीं आता है। मैं कैसा हूं? मैं स्वाद बिगाड़ रहा हूं या मैं स्वाद ला रहा हूं? मेरे रहने से किसी को फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? मैं उजाला दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं? सोचने का एक विषय है। हम लोग को प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु से कहना है, प्रभु मेक मी द लाइट, मेक मी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्शिप, है ना? प्रभु मुझे एक वर्शिप का इंस्ट्रूमेंट बनाइए, मैं वर्शिप कर सकूं, मैं आराधना कर सकूं, ताकि लोग मेरे भले कामों को देख करके किसकी? पिता की महिमा जो स्वर्ग में है कर सकें।
मुझे मेरे कामों को देख करके, भले कामों को देख करके, क्या मैं या मेरे काम, है ना, या मेरी प्रेजेंस को देख करके लोग प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं क्या? वेरी सिंपल, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, वेरी सिंपल थिंग, है ना। आजकल इंट्रोस्पेक्शन होता है, एक हमारे यहाँ होता है 360 डिग्री इवैल्यूएशन। आप मेरे बारे में बताओगे, मैं आपके बारे में बताऊंगा, वो उससे भी मेरे बारे में पूछेंगे, उससे भी मेरे बारे में पूछेंगे, 360 डिग्री इवैल्यूएशन। उसके बाद पता चलेगा ये क्या है ना। कई लोग तो हमारे लोग मक्खन लगाने के लिए कुछ कुछ अच्छा बोल देते हैं। 360 डिग्री इवैल्यूएशन। एक समय आया था प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी, उसने भी क्या कहा, चेलों से पूछा, बताओ भाई इन लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? किसी का कुछ एलिया कहता है, कोई ये कहता है, कोई कहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर यीशु मसीह ने पहले तो लोगों के बारे में पूछा, लोग क्या कहते हैं, फिर पूछा ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? 3 साल से मेरे साथ हो, 2-2.5 साल 3 साल हो गए, क्या कहते हो मेरे बारे में? तब पीटर कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? What people are talking about me? What they are telling about me? What do they think about me? क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या कहते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं, क्या मेरे कर्म मेरे पिता की महिमा का कारण है? हम लोग अपनी चारों तरफ नजर घुमा के देख सकते हैं, कितने मसीह भाई हैं, बहनें भी हैं, उसमें बहनें भी हैं। क्या हम मसीह की महिमा का कारण हैं? आज के समय में जब हम लोग शांत हैं, चीजें थोड़ी थम सी गई हैं, या ये कहने चीजों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, आज वो रश नहीं है, थोड़ा सुकून है, थोड़ा लाइफ ईज हुई है। ऐसे समय में we need to think it of, who am I, why I am here, why God has designed me, why God has purchased me through his precious blood। क्यों प्रभु ने मुझको डिजाइन किया है, प्रभु ने इस मिट्टी के शरीर में क्यों अपना श्वास और आत्मा फूंका है। न केवल आत्मा और श्वास फूंका, उसके बाद जब हम दुनिया में जाकर के खो गए, फिर से अपना बेशकीमती लहू बहा करके हमको फिर से खरीद लिया। क्यों? वचन कहता है कि किसी ने भी ऐसा प्यार नहीं किया कि वो कोई किसी के लिए अपनी जान दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्यार किया, एंड विदाउट एनी प्रॉफिट। सो प्रभु का धन्यवाद देंगे सारी बातों के लिए, और हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ अपने बारे में बहुत कुछ, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। व्हाट पीपल डू थिंक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। स्तुति और महिमा के योग्य प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, गुणवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप अति महान प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं। आपने प्रभु जी हमको डिज़ाइन किया, हमको बनाया। माता के गर्भ में जब हम थे, जब हम अद्भुत रीति से रचे जाते थे, तब से आप हमें जानते हैं। और इस पृथ्वी की सृष्टि से पहले से आप हमें जानते हैं कि कब आना है हमको, किस एरा में आना है, किस ईयर में आना है, सब कुछ आप जानते हैं। तो सबके बावजूद आपने हमें ये फ्री विल भी दी है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने नियमानुसार, अपने शर्तों का अपने तरीके से जी सकते हैं। सेम टाइम आपने एक मॉड्यूल भी दिया है, एक लाइफस्टाइल भी जी के दिखाई है कि ऐसे जीना है, ये नियमों का पालन करना है। आपने मैनुअल भी दिया है और आपने हमें सुइच्छा भी दी है कि हम अपनी सुइच्छा के अनुसार उस मैनुअल को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन उसका प्रभु जी प्रतिफल भी प्रभु जी आपने रखा है।
और इसमें भी प्रभु जी आपने प्रभु जी ग्रेस दे रखा है कि जब भी हम प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, माफी मांगते हैं, आप क्षमा कर देते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु जी हर जगह प्रभु जी आपका प्रेम इतना महान है कि आप चाहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से, जैसा हमने कल सुना, उस सकरे दरवाजे से निकल जाएं। आपने हर जगह हमको प्रभु जी एक्सटेंशन दिया है, ग्रेस दिया है प्रभु जी, कि हम उस सकरे द्वार से प्रवेश करें प्रभु जो आप हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए, इस प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी अपनी पूरी कलीसिया को, जितने लोग देख रहे हैं उनको भी प्रभु जी हम आपके नाम से प्रभु जी आशीषित करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आशीषों के देने वाले आप हैं प्रभु जी। स्रोत जो रिसोर्स हैं प्रभु जी आप हैं प्रभु जी। एक चीज हम पढ़ते हैं यशायाह में प्रभु, वो जो एक नदी थी वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है वो धीरे धीरे वो चौड़ी होती जाती है। समय ऐसा आता है वो नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि वो पार नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो बढ़ती बढ़ते 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 इतनी हो जाती हैं कि हम उसको पार भी नहीं कर सकते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपने सारे लोगों को प्रभु जी, जितने भी लोग ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं, जो आगे भी सुनेंगे प्रभु जी, सभी लोगों को आपके हाथ में अर्पित करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें ब्लेस कीजिए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए, सारी बातों को के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे एक मात्र उद्धारकर्ता मुझे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की, और प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।